Hello and good morning, dear students. In this video, we will read the Unit 3 with the title All in Good Humor. Now, this unit will deal with the chapters in which the different actions are done with quite humor and in quite good gesture. So, and the class today that we are going to hold is about boating with friends, chapter B of your unit 3. And it starts with a very unique question. If you were to go an adventure trip with a group of like-minded people, what would you choose to do and why? Now 4 options are given and it depends upon person to person that which type of sport like he would like to do with the friends or with the people of his own mind. Now we are going to read a story about 3 friends who enjoy a boating trip on the river Thames. And to tell you, this story is about 3 friends and has been taken from the novel Three Men in a Boat. Alright, so without wasting any more time, just let us quickly jump to the story. There were 3 in a boat: Jerome, George, and Harry. They planned to spend a few days boating on the Thames. The clock on the cabin wall showed 6 in the morning. For the past hour, Jerome and George had been sitting huddled up in the blankets, sharing their experiences, some true and some not so true. तो ये कहानी है 3 दोस्तों के बारे में जो कि बोट में बैठे हैं, जेरोम, जॉर्ज और हैरी। और इन लोगों ने प्लान कर रखा है कि ये लोग कुछ दिनों तक बोटिंग करेंगे थेम्स, जो कि लंदन की फेमस रिवर है। एक्चुअली जो लंदन सिटी है वो थेम्स के बैंक पे ही बसा हुआ है। तो और इस वक्त घड़ी में 6 बज रहे हैं और पिछले कुछ घंटे से जेरोम और जॉर्ज अपने कंबल में लिपटे बैठे पड़े हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, कुछ सही तो कुछ गलत। When Jerome finished his narration, George set to work to wake up Harry with his point of an umbrella. "Wake up, lazybones." The third prod did it, but he turned over on the other side and said he would be down in a minute. He was still dreaming. तो जॉर्ज अभी अपने काम पे लग जाता है। वो हैरी को उठाता है विद द पॉइंट ऑफ एन अम्ब्रेला। और जो तीसरा बंदा है, दिस थर्ड प्रॉड, वो दूसरी करवट पे सो जाता है और कहता है कि वो कुछ मिनट में नीचे उतर आएगा। असल में वो अभी सपने देख रहा था। दे सून लेट हिम नो वेयर ही वॉज, हाउएवर विद द एड ऑफ द बोट हुक, एंड ही सैट अप सडनली। हालांकि बाकी दोनों ने उसे तुरंत ही ये बता दिया कि वो कहाँ हैं जब उन्होंने बोट हुक की मदद से उसे उठाया और वो तुरंत ही उठ बैठा। As you can see from the picture, one is sleeping while the other 2 are trying to pinch him, either with the point of an umbrella or with the boat hook. So, next page. George pulled up the canvas and the 3 of them poked their heads out to look down at the water. They shivered at the night. The idea agreed upon the night before had been that they would get up early in the morning, flying off the blankets, leap into the river with a joyous shout, and enjoy a long, delicious swim. Now that morning had arrived, however, the notion seemed less tempting. The water looked dark and chilly. The wind felt cold. तो जॉर्ज उठता है और कैनवस पर्दे हटाता है और तीनों ही एक साथ देखते हैं जब खिड़की से बाहर, तो उन्हें क्या दिखाई देती है? तीनों ही वाटर की तरफ देखते हैं एंड द शिवर्ड एट द साइड। वो लोग इसको देखते ही कांप उठते हैं। शिवर्ड मीन्स कांपना। और जो आइडिया उन्होंने पिछली रात बनाया था कि ये तीनों ही सुबह जल्दी उठेंगे, अपने अपने ब्लैंकेट्स हटाएंगे और नदी में छलांग लगा देंगे एक खुशी की चीख के साथ और इन्जॉय करेंगे अपने इस ग्रेट एडवेंचर को, इस स्विमिंग को। अब जबकि सुबह हो चुकी थी, तो ये जो आइडिया था इन लोगों का, नोशन मीन्स आइडिया,
वो अब उन्हें ज़रा भी उत्साहित नहीं लग रहा था। टेम्पटिंग मतलब होता है ललचाना या उत्साही करना। जो बाहर जो वाटर था वहाँ अभी भी अंधेरा और वो काफ़ी ठंडा था। द विंड फेल्ट कोल्ड, और जो हवा चल रही थी उससे ठंड का अनुभव अभी भी हो रहा था। वेल, हु इज़ गोइंग इन फर्स्ट, सेड हैरी एट लास्ट। तो हैरी कहता है कि सबसे पहले कौन जा रहा है। देयर वॉज नो रश फॉर प्रेसिडेंस। जॉर्ज सेटल्ड द मैटर फॉर हिमसेल्फ। ही सैट डाउन एंड स्टार्टेड पुलिंग ऑन हिज शॉक्स। Harry said it would be messy to get into the boat again, so he started sorting his clothes and promptly dressed for the day. That left Jerome to decide what he was going to do. तो कोई भी पहले जाने को तैयार था नहीं। जॉर्ज ने कहा, वो बैठ गया और उसने कहा कि वो तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। सो उसने वापस अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, पुलिंग ऑन हिज शॉक्स। हैरी ने कहा कि ये काफ़ी मेसी होगा बोट में जाकर बैठना, तो उसने अपने कपड़े छांटना शुरू किया ताकि दिन के लिए तैयार हो सके। मतलब कि दोनों का ही प्रोग्राम उस रिवर में जंप करने का बिल्कुल भी नहीं था। दैट लेफ्ट जेरोम टू डिसाइड व्हाट ही वॉज गोइंग टू डू। अब बच गया जेरोम, जिसे ये डिसाइड करना था कि क्या उसे जंप करना है या नहीं। इट वॉज जेरोम्स आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे बड़ी बात कि ये आइडिया किसी और का नहीं बल्कि जेरोम का ही था। एंड ही डेस्परेटली वांटेड टू शो दैट इट वाजंट अ हेयर ब्रेन्ड आइडिया एट ऑल। और वो इसको दिखाना चाहता था कि ये आइडिया कोई उसने वैसे ही बिना कुछ सोचे समझे ही नहीं लिया। दो नाउ ही डिड नॉट रिलिश द प्लंज। हालांकि अब उसका इस खतरे को एंजॉय करने की कोई इच्छा नहीं थी। He began to make excuses for himself. There might be snakes about or weeds. अब वो खुद से बहाने बना रहा है कि हो सकता है कि इस पानी में स्नेक हो सकता है कि इसमें वीड्स हो, जंगली पेड़ पौधे हों। बट देन ही डिसाइडेड टू सेव फेस बाई गोइंग डाउन टू द एज एंड जस्ट डिपिंग हिज लेग्स इन द वाटर। लेकिन वो भी कम चालाक नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप जाएगा किनारे पे और अपने पाँव को डुबा करके वापस बोट पे चढ़ जाएगा। ही टुक अ टॉवल, crept out onto the bank and wormed his way along onto the branch of a tree that dipped down into the water. तो उसने क्या किया, तौलिया लिया, खुद को बोट के बैंक तक ले गया और खुद को एक ऐसे टहनी पे खुद को टिका करके अपने पाँव को डुबाने लगा जिस टहनी का एक सिरा नदी में जा रहा था, डूबा हुआ था। इट वॉज बिटरली कोल्ड, लेकिन पानी काफ़ी ठंडा था। द विंड कट लाइक अ नाइफ एज ही स्टूड ऑन द ओवर हैंगिंग ब्रांच। जैसे ही वो उस झूलते हुए ब्रांच के सहारे खड़ा होता है, ठंड के मारे ऐसा लग रहा था जैसे हवा उसे काट रही हो। देन ही स्टार्टेड हैविंग सेकेंड थाट्स। ही वुड मीकली गो बैक इन टू द बोट एंड ड्रेस। और उसके दिमाग में एक और आइडिया चल रहा था कि वो चुपचाप बोट में चला जाएगा और कपड़े बदल लेगा। He decided to risk their jeers, but as he turned, the wicked branch gave away. तो वो चूँकि उसको पकड़कर खड़ा था और उसके मन में चल रहा था कि वो उनके साथ उन्हें चिढ़ाएगा, अपने बाकी दोस्तों को, क्योंकि वो लोग पानी में नहीं गए। और उसका आइडिया था कि वो बोट पर चुपचाप जाके अपने कपड़े बदल ले, जिससे कि उसके फ्रेंड्स को लगे कि वो पानी में नहाकर आया है। बट वो जैसे ही बोट पे उतरने के लिए मुड़ा, ही एंड द टॉवल वेंट इन टुगेदर विद अ ट्रिमेंडस स्प्लैश। तो पानी में वो तो गिरा ही, साथ वो तौलिया और साथ ही साथ वो ब्रांच। ही वॉज आउट मिड स्ट्रीम विद अ लीटर ऑफ थेम्स वाटर इनसाइड हिम बिफोर ही न्यू व्हाट हैड हैपेंड। अब वो थेम्स रिवर की मेन स्ट्रीम में था, मुख्य धारा में था, और उसके भीतर कई लीटर थेम्स का पानी भर चुका था, इसके पहले कि वो जानता कि हुआ क्या है। ऑलराइट, सो यू कैन सी हाउ ही फॉल when the branch of the tree fell down into the river. You can see how he is shaking badly, how he is shivering badly because of the cold weather. So let's read the next page. Hey dude, Jerome's gone in.
he heard Harry say as he came blowing to the surface, I didn't think he had the pluck to do it, did you? तो तभी जेरोम के बारे में हैरी कहता है कि अरे देखो, जेरोम पानी में चला गया। तो जो जॉर्ज था वो कहता है कि क्या हैरी ये कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जेरोम के पास इतना करेज है, हैव द प्लक, इतना पावर है, इतना करेज है कि वो चला जाए? डिड यू, क्या तुम्हें लगता है? हाउ इज़ द वाटर? जॉर्ज सैंग आउट स्निगरिंग। और जो जॉर्ज था वो चिढ़ाते हुए कहता है कि हाउ इज़ द वाटर, वाटर कैसा है? ऑलराइट, सो लवली, जेरोम स्प्लटर्ड बैक। अब जेरोम ने तुरंत रिप्लाई दिया, झिड़कते हुए, झूठ बोलते हुए, लवली, यू आर फूल्स नॉट टू कम इन, तुम लोग तो फूल हो जो इस पानी में नहीं आए। आई वुडंट हैव मिस्ड इट फॉर द वर्ल्ड। वो कहता है कि मैं इस चांस को खोना नहीं चाहता था। यू कैन सी हाउ ही इज़ लाइंग, ही फेल इन देयर बाय अ मिस्टेक एंड नाउ ही इज़ मेकिंग साउंड सो दैट हिज फ्रेंड्स कुड ऑल्सो फॉलो इन द सेम ट्रैप। ऐसा होता है जब कभी हम गिरते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे ही किसी कंडीशन में गिरें। सो कम ऑन इन, ट्राई इट, जस्ट अ वी बिट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट्स ऑल इट टेक्स। आ जाओ, ट्राई करो, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। बट नो, नथिंग कुड परसुएट देम। लेकिन नहीं, दोनों फ्रेंड्स पहले ही काफ़ी तैयार, दोनों को कुछ भी डिगा नहीं सकता था। कोई भी पावर दुनिया की इन दोनों को समझा नहीं सकती थी। Jerome was very cold when he got back into the boat and in his hurry to get his shirt on, accidentally jerked it into the water. It annoyed him all the more because George found it very amusing and guffawed. अब जेरोम, क्योंकि काफ़ी ठंड उसको लग चुकी थी और वो बोट पे चढ़ा और शर्ट पहनने की हड़बड़ी में वो उस शर्ट को पानी में गिरा बैठा। इससे उसे काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि जॉर्ज ने इसे काफ़ी अम्यूजिंग, काफ़ी फ़नी और इंटरेस्टिंग माना। मतलब जॉर्ज को इस बात की खुशी हो रही थी कि जेरोम ने अपने शर्ट को गिरा दिया, बजाय कि उसे यह पहनना चाहिए था। यू मॉन्स्टर, जेरोम स्कॉल्डेड हिम, हैव सम पिटी ऑन मी, आई एम फ्रीजिंग एंड यू आर लाफिंग। यू मॉन्स्टर, जेरोम उसे डांटते हुए कहता है, मुझ पर थोड़ी तो दया करो, मैं यहाँ ठंड से काँप रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। बट जॉर्ज फाउंड हिज प्रोटेस्ट इवन मोर हिलेरियस एंड लाफ्ड हिस्टेरिकली। लेकिन जॉर्ज तो अपने विरोध में और भी ज़्यादा हंसे जा रहा था, बिल्कुल जैसे उसे इसकी धुन लग गई हो। हिस्टेरिक मीन्स लाइक अ धुन, पक्का एकदम एक सिरे से कंटिन्यू करते रहना। सो जेरोम हैड नेवर सीन हिम लाफ सो विकेडली, ही लॉस्ट हिज टेम्पर विथ हिम। जेरोम ने कभी उसे ऐसा दुष्टों जैसा हंसते हुए नहीं देखा था, तो उसे अपने टेम्पर पे काबू नहीं रहा। What a heartlick maniac you are, he said, but George only roared louder. वो कहता है कि तुम कैसे निर्दयी प्राणी हो, बट जॉर्ज की हंसी अभी भी और तेज होती जा रही थी। जेरोम मैनेज्ड टू गेट द शर्ट ऑन टू द बोट हुक एंड हॉल इट आउट ऑफ द वाटर। जेरोम ने कैसे भी करके मैनेज करके उस शर्ट को पानी से बाहर निकाला। At that precious moment he realized that it was not his shirt at all. और तभी उसी वक्त उसे मालूम पड़ गया कि ये शर्ट उसकी नहीं है, बट जॉर्जेस, ये शर्ट जॉर्ज की है। He had mistaken it for his in a hurry to get dressed. उसने हड़बड़ी में जॉर्ज की शर्ट निकाल ली थी। The humor of the thing struck Jerome for the first time and he began to laugh. और अब जेरोम को भी हंसी आ पड़ी और वो भी हंसने लगा। And the more he looked from George's wet shirt to George, और जब जितनी बार वो जॉर्ज के वेट शर्ट को देखता, रोअरिंग विथ लाफ्टर, वो और हंसता। द मोर ही वॉज अम्यूज्ड, जितनी बार वो देखता उतना ही जॉर्ज भी हंस रहा था और जेरोम भी हंस रहा था। जेरोम नाउ लाफ्ड सो मच दैट ही लेट द शर्ट फॉल बैक इनटू द वाटर अगेन। और जेरोम को इतनी खुशी आई, इतना हंसी आया कि उसने उस शर्ट को दोबारा उस पानी में डाल दिया। आरंट यू गोइंग टू गेट इट आउट, क्या तुम उसे बाहर निकालने नहीं जा रहे? सेड जॉर्ज बिटवीन हिज श्रीक्स, मतलब अपने गुस्से के बीच वो कहता है कि क्या तुम उसे बाहर नहीं निकालने जा रहे?
जेरोम couldn't find answer for a while. जेरोम ने कुछ देर तो कोई आंसर नहीं दिया. He was laughing so much, but at last, between his piece of laughter, he managed to jerk out, "It isn't my shirt, it's yours." वो कहता है कि ये मेरी शर्ट नहीं है, ये तो तुम्हारी शर्ट है. Jerome never saw a face change from lively to severe so suddenly in all his life. और जेरोम ने कभी भी ऐसा फेस का चेंज अपनी लाइफ में नहीं देखा था जॉर्ज के चेहरे पे. जितनी जल्दी उसका चेहरा एक हंसी खुशी चेहरे से गुस्सैल हो गया था, वैसा उसने आज तक कभी नहीं देखा था. What he yelled, वो चिल्लाता हुआ कहा. Springing up, बिल्कुल चिल्लाते हुए उछल पड़ा. You silly cuckoo, my most expensive shirt. Why can't you be more careful of what you are doing? वो कहता है कि ये मेरी सबसे कीमती शर्ट थी, तुम कुछ भी करने के पहले केयरफुल क्यों नहीं होते हो? Why don't you go and dress on the bank? तुम्हें किनारे पर जाकर के कपड़े पहनने चाहिए थी. You are not to be in a boat. Give me the boat hook. वो कहता है कि तुम मुझे बोट की हुक दो, तुम्हें इस बोट पर रहने का कोई हक नहीं. You are not the one to be on a boat. Jerome tried to make him see the fun of the thing, but he could not. जेरोम उसे दिखाना चाहता था इसका मज़ा, बट वो उसे दिखा नहीं पाया. जॉर्ज was very dense at seeking a joke sometimes, or perhaps he didn't care much about doing to others as he wanted them to do him. अब जॉर्ज एक ऐसा लड़का था जिसे खुद के साथ वो मजाक पसंद नहीं थे जो वो दूसरों के साथ किया करता था. हैरी फाउंड दैट रियली अम्यूजिंग, और हैरी को ये काफ़ी अम्यूजिंग लग रहा था बाकी दोनों फ्रेंड्स जॉर्ज और जेरोम को आपस में हंसी मजाक और लड़ते झगड़ते हुए. इट सीम्ड जॉर्ज हैड नॉट अंडरस्टूड द प्रिंसिपल. शायद जॉर्ज उस प्रिंसिपल को समझ ही नहीं पाया था. दैट डू टू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू टू यू. दूसरों के साथ वही करो जो तुम दूसरों से खुद के लिए उम्मीद रखते हो. सो दिस इज़ एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 Men in a Boat. As I said you, it's a very long novel. From this, a short, funny extract has been taken out for you, where 3 friends on their journey are making fun of each other. They have made a determination, but all the determination fails in the end because of the cold river water. And the novel is written by Jerome K. Jerome. So that's all for today. In our next class, we will read and discuss the question answers. Thank you.